Hello, everybody. Namaskar. Welcome to the Prepcast, a competitive exam podcast. And in this particular series, we are going to start with the Modern Indian History podcast. This series is going to be useful for anyone who is preparing for any competitive exam or any such individual who wants to understand how has India taken its shape, how has the today's India taken its shape. So, talking about the topic, though we talk of the ancient, medieval, and modern periods in history, history is basically a continuity. It is not always easy to distinguish clearly when one period ends and another begins. So, if we think of the history of modern India as beginning with the advent of Europeans, we need to go back to the medieval period, specifically to the 15th century. तो जो 15वीं सदी का पीरियड है उस समय जब हम जाएंगे तो then we'll understand the real foundation, the real base of the modern Indian history and particularly the advent of Europeans. So, this was indeed a time before the Mughals came and established their empire. So, we need to understand how this time has evolved, how this time evolved into the Mughal period, and then how things really came up till the freedom and, in fact, the post independence period as well. Now, talking about the timeline of the advent of Europeans. So, who came first and who was ruling in that period? This is important for us to know. तो जैसे 1498 में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड दे केम इन कोचिन एंड गोवा. इस समय पे लोधीज जो है वो रूल कर रहे थे. देन इन 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम. दे केम इन मद्रास एंड कैलकटा. इस समय पे अकबर वॉज अलाइव एंड 1605 में जहांगीर रूल कर रहे थे. देन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम. They came in Pulicat and Nagapattinam. After 1605, Aurangzeb was ruling. Then in 1616, Danish East India Company came in Sirampur. And in 1664, French East India Company came in Pondicherry. See, there were two types of states evolved after the death of Aurangzeb. Now, this is a very important point which needs to be understood. So there were two types of states. ठीक है, पहले थे सक्सेसर स्टेट्स और दूसरे थे रिबेलियस स्टेट्स. नाउ ये जो दो स्टेट्स थे इनका एक कॉमन पॉइंट ये था कि ये दोनों ही सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे. दीज टू वेर द सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स. अब सक्सेसर स्टेट्स कौन से थे? सो सक्सेसर स्टेट्स उनको बोला जाता है जहाँ पे उन लोगों को बोला जाता है जिन्होंने इन स्टेट्स को बनाया थ्रू द नोबल्स ऑफ द मुगल कोर्ट. सो पीपल हु फाउंडेड दीज स्टेट्स वेयर द नोबल्स ऑफ द मुगल कोर्ट. एंड रिबेलियस स्टेट्स वो थे जहाँ पे ऑलरेडी कोई डायनेस्टी थी फ्रॉम टाइम. ठीक है, एंड उसके बाद उसको सप्रेस किया गया औरंगज़ेब के रूल में. और औरंगज़ेब की डेथ के बाद फिर से वो एक असर्टिव या उसने अपने आप को री एस्टैब्लिश किया. उसने उस स्टेट ने अपनी इंडिपेंडेंस को री एस्टैब्लिश किया. जैसे मैसूर हो गया, मराठा हो गया, सिख हो गया. सो रिबेलियस वेर द वन वेर ऑलरेडी सम डायनेस्टी वॉज देयर फ्रॉम द टाइम एंड वर सप्रेस्ड बाय द औरंगजेब्स रूल, and after his death again became assertive and re-established their independence. So example is Mysore, Maratha and Sikh. Successor states जो है उन स्टेट्स को कहा जाता है जहाँ पे लोगों ने खुद, जो नोबल्स थे मुगल कोर्ट के, उन्होंने खुद इन स्टेट्स को बनाया था, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड कर्नाटक. तो ये अपने को ना ये क्लियर रखना है कि सक्सेसर स्टेट्स कौन से हैं, रिबेलियस स्टेट्स कौन से हैं. अभी आगे ये काफ़ी यूज़फुल होगा हमारे लिए. देन कम्स द पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स.
ठीक है। तो बहादुर शाह आए 1707 से 1712 तक। सो 1707 में औरंगज़ेब डाइड, आफ्टर विच केम बहादुर शाह वन, देन केम मोहम्मद शाह 1719 टू 1748 तक इनका रूल रहा। इसके बाद शाह आलम टू आए 1760 से 1806 तक। देन केम बहादुर शाह जफ़र, he ruled from 1837 to 1857, and the remnants of Mughals was completely swiped from India by 1857. तो 1857 को, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट साल रहा है ये अपने हिस्ट्री के लिए। एंड ये वही साल है जब मुग़ल कोर्ट की पूरी निशानी मिटा दी गई थी। So the main challenge of British was not the later Mughals but the regional states, या जो successor states और rebellious states थे, वो जो है अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश के लिए सबसे मेजर चैलेंज थे। अब रीजनल किंगडम्स की बात करते हैं। तो कार्नाटिक वॉर्स कब हुए, कहाँ कहाँ इंट्रूजन हुआ यूरोपियंस का, आई एम जस्ट गिविंग अ टाइम लाइन सो दैट when we'll be dealing with these kingdoms and the intrusion of Europeans, तो हमारे को क्लियर रहेगा। तो कार्नाटिक वॉर्स जो हुए थे उसमें 1746 से लेके 1748 के बीच में पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था। देन 1749 से 1754 के बीच में दूसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था। 1758 से 1763 के बीच में तीसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था। अब इसमें 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। देन टॉकिंग अबाउट द बंगाल, तो बंगाल को माना गया था रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, सबसे रिच प्रोविंस माना गया था इंडिया का उस समय। और बंगाल के जो फाउंडर थे, ही वॉज मुर्शीद कुली खान। इनका जो रूल रहा वो रहा 1717 से 1727 के बीच में। देन इसके बाद अली वर्दी खान आए 1740 से 1756 के बीच में। फिर 1756 में सिराजुद्दौला थे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। यहाँ पे इसी बैटल के बाद अंग्रेज़ों को ज़मींदारी राइट्स मिले थे। सो ब्रिटिश रिसीव्ड ज़मींदारी राइट्स इन मेजर एरियाज ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, एंड in 1764 battle of Buxar happened. So during these two battles, British received zamindari rights in major areas. Talking about Mysore, मैसूर में सबसे पहला जो रूल है, जो सिग्निफिकेंट रूल है, वो हैदर अली का देखा गया 1761 से 1782 के बीच में। एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल व्हेन the establishment of modern Mysore happened. In fact, हैदर अली के रूल में ही जो रिचनेस थी मैसूर की वो सिग्निफिकेंटली बढ़ी थी। ठीक है। इसके बाद 1766 से 1769 के बीच में जब हैदर अली का रूल था, उसी बीच में पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। एंड यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो डिफीट हो गई थी, ब्रिटिश वॉज डिफीटेड। फिर 1780 से 1784 के बीच में, सो द वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1780 में स्टार्ट हुआ। और इसी दौरान, इसी वॉर के दौरान हैदर अली वॉज डिफीटेड, जिसके बाद ही इनके बेटे टीपू सुल्तान जो हैं उन्होंने वॉर को कंटिन्यू किया था 1782 से। देन 1790 से 1792 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, वेरिन Tipu ceded half of his territory, and in 1799 fourth Anglo-Mysore War happened, where the Tipu Sultan was defeated and he was killed under Wellesley. तो वेलेस्ली थे उस समय, और उन्हीं के समय पे टीपू जो है वो हार गए थे और उन्हें मार दिया गया था। फिर अगर मराठा की बात करें तो जहाँ तक रीजनल प्लेयर्स, सक्सेसर्स या रिबेलियस स्टेट्स की बात आती है, मराठास जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने गए थे। इनकी वॉर स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी
और सबसे ज़्यादा यूनिक भी थी. इनफैक्ट कई बार क्वेश्चन भी आता है जो इनकी वॉर स्ट्रैटेजी थी उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे. एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में अगर बात करें तो 1775 से 1782 के बीच में पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था. ब्रिटिश वॉज डिफीटेड. देन 1803 से 1806 के बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हैपेंड and Maratha were defeated in this war and they were signed a subsidiary alliance. Then 1817 से 1818 के बीच में तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था. Talking about the next province that is Punjab. So पंजाब के अंदर हम इंडिया वाला पाकिस्तान भी देखेंगे और पाकिस्तान साइड वाला पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था. So the founder of Sikh state of Punjab was महाराजा रंजीत सिंह. ये थे 1792 से 1839 के बीच में. इसके बाद 1845 से 1846 के बीच में एक साल पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था जहाँ पे सिख वर डिफीटेड. देन 1848 से 1849 के बीच में दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ था जहाँ पे पंजाब एनेक्स्ड. एंड इन middle of the war in 1839 रंजीत सिंह डाइड. तो इनकी डेथ के बाद ही पंजाब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी. 1848 जो दूसरा एंग्लो सिख वॉर था उसी समय पे डेलहाउजी जो है वो पावर में आए थे. यहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को साइन किया गया एंड देन एनेक्सेशन हैपेंड. फिर बात आती है 1857 रिवोल्ट की. तो 1857 जो है वो साल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया है. इसको फर्स्ट ग्रेट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट इन इंडिया कहा जाता है. एंड दिस वॉर, दिस रिवोल्ट बस्टेड द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी, implanted seed of nationalism. Now this year, this war, this revolt is believed to be implanting the seed of nationalism. इसी वॉर के थ्रू लोगों के अंदर नेशन की जो फीलिंग है, एकाग्रता, नेशन की जो फीलिंग है वो आई थी. एंड दिस वॉर बस्टेड द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी. तो बेसिकली एक ये फीलिंग सारे देशवासियों में आई कि अगर हम सब एक साथ मिलके इनके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे तो हम जीत जाएंगे कभी ना कभी. इसके बाद शुरू होता है फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड. तो फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड बिगिंस विद 1885 विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. So this was believed to be the first phase of Indian freedom struggle. इसी टाइम पे अर्ली नेशनलिस्ट जो है उनका इवॉल्वमेंट देखा गया. इसके बाद इसी पीरियड में पीसफुल एजिटेशंस होते थे. पीसफुल एजिटेशंस का मतलब कि दे वर वर्किंग अंडर द लॉ. देन प्रेयर्स एंड पिटिशंस टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ वर मेड. देन अर्ली नेशनलिस्ट जो थे they did not had faith in the capacity of masses as they were not so much aware. So A.O. Hume basically was the founder of Indian National Congress. We'll be dealing with this topic in very detail. जो पहला फेज़ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का. इसके बाद दूसरा फेज़ आता है नेशनलिज्म का 1905 में, wherein the British were apprehensive whether they could further rule the country or not. So इन्होंने काफ़ी प्लानिंग के साथ, काफ़ी सोच के साथ कम्युनल हेट्रेड को प्लांट किया लोगों के बीच में, और इसी के साथ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल स्टार्ट हुई. फिर 1905 में ही जो उस समय का बंगाल था डिवाइड हो चुका था ऑन कम्युनल पॉलिटिक्स. ईस्ट बंगाल जो था वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी और वेस्ट बंगाल जो था वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल entered into the second phase by manifesting in the Swadeshi movement, right? And this movement was done by the two streams of Congress, the moderates and the extremists. तो स्वदेशी मूवमेंट क्या था, ब्रीफ में फटाफट एक पॉइंट हम लोग देख लेंगे. स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिश
गुड्स एंड सर्विसेज को पूरे तरीके से बहिष्कार किया गया था, बॉयकॉट किया गया था. Slowly gripped in the whole country. This movement slowly gripped into the whole country. Then large number of public participated in this movement and British were threatened. सूरत स्प्लिट हुआ इसी के बाद और कांग्रेस स्प्लिट हुआ इसी के बाद. तो दो स्ट्रीम्स बन गई कांग्रेस की, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की. मॉडरेट्स जो थे दे बिलीव्ड इन प्रेयर पिटिशंस ऑफ ब्रिटिश एंड दे वर अश्योर्ड बाय द ब्रिटिश. लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रीम थी कांग्रेस की, they were passive resistance. So boycott of British goods and services, then they faced harsh consequences by the British. Extremists जो थे उनको harsh consequences face करना पड़ा था ब्रिटिश के द्वारा. तो इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ. 1885 से 1904 के बीच में मॉडरेट का फेस चला. फिर 1905 से 1917 तक एक्सट्रीमिस्ट फेस का टाइम चला. फिर 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है. 1905 से 1908 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, जहाँ पे ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज को कम्प्लीटली बॉयकॉट किया गया था. 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ. इसी साल कैलकटा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुई एंड 1907 में ही एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हिंदू महासभा वॉज फॉर्म्ड. देन 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज साइंड wherein the introduction of separate electorate for Muslims happened. इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन ऑल्सो has a very major role to be played into the freedom phase, into the freedom struggle phase of the country India. So World War One brought another consequences. जैसे young youth were resorted to violence. Revolutionary terrorism phase हुआ था. So revolutionary terrorism phase 1, 2, 3 happened. Then Ghadar movement happened. So 1914 में Tilak came back from Mandalay jail and he started home rule movement in 1916, जिसमें कि नेहरू, C.R. दास, they were also involved. Then 1916 में Lucknow Pact happened. After this, let's deal with the Gandhian era, which is most important for us to note. So Gandhian era starts in the year 1893. एंड 1893 से 1914 के बीच में गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका. देन 1915 से 1948 के बीच में गांधी का जो फेज़ है वो इंडिया में देखा गया. 1915 में गांधी अराइव्ड इन बॉम्बे. 1917 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विच वॉज द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कैंपेन. Then 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हैपन एंड दिस वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक. पहली भूख हड़ताल जो थी वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी 1918. देन पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ विच वाज खेड़ा सत्याग्रह, दिस हैपेंड इन 1918. देन 1919 में पहली मास स्ट्राइक हुई विच वाज द सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलैट एक्ट. Then 1919 में the major Jallianwala Bagh massacre happened and this was on 13th of April 1919. Then 1919 में ही Montague Chelmsford हुआ. फिर 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड. 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट्स हैपेंड. देन 1922 में ही स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स का जो रोल है वो सामने आया था. इसके बाद 1925 में काकोरी रॉबरी हैपेंड. अब उसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है. 1927 में साइमन रिपोर्ट आई थी. 1928 में सॉन्डर्स मर्डर हैपेंड. देन 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब प्लांट किया गया था. देन 1930 में चित्तगोंग आर्मी रेड हुई. 1928 में नेहरू रिपोर्ट केम. इन द सेम ईयर कैलकटा सेशन हैपेंड ऑफ द कांग्रेस.
1929 में इरविन्स स्टेटमेंट केम. देन 1929 में ही 2 नवंबर को दिल्ली मैनिफेस्टो हैपेंड. 1929 में ही लाहौर सेशन एंड पूर्ण स्वराज हैपेंड. एंड on 31st December 1929, at midnight on banks of River Ravi, newly adopted tricolor flag was hoisted. तो पहली बार रवि नदी के किनारे जो नया तिरंगा जो है उसको फहराया गया था विद स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद. और इसी के साथ 26 जनवरी जो कि अगले महीने था 1930 में इंडिपेंडेंस की प्लेज लेने का प्लान किया गया था. 31 जनवरी 1930 को गांधी के 11 डिमांड आए थे जिसका फेलियर जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह की तरफ ले गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ. फिर मार्च से अप्रैल तक 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में दांडी मार्च हुई. इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैपेंड नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, वेर इन कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट. मुस्लिम लीग गई थी, हिंदू महासभा गई थी, लिबरल्स गए थे और प्रिंसेस गए थे. जितने भी ये रीजनल प्लेयर्स के प्रिंसेस थे ये लोग गए थे. फिर 25 जनवरी 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हैपेंड. देन 1931 में कराची कांग्रेस सेशन हैपेंड. इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैपेंड. सेकेंड राउंड टेबल जो थी वो लंदन में हुई थी. यहाँ पे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और इसी के अंडर दिल्ली पैक्ट को साइन किया गया था. फिर अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट आता है. कम्युनल अवार्ड वाज बाय ब्रिटिश. पूना पैक्ट वाज साइंड बाय अंबेडकर ऑन बिहाफ ऑफ the depressed class in September 1932. Then in 1933, Gandhi's Harijan campaign happened. So this was the first from jail and after release in open. All India Anti-Untouchability League in September 1932 happened. And then इसी के बाद एक वीकली हरिजन जो है वो सर्कुलेट होने लग गई थी जनवरी 1933 में. Then comes the Government of India Act 1935. Very important. 1939 में से 47 तक, so 1939 से 1947 तक the national movement towards freedom and partition started. Second World War हुआ, nationalist response देखा गया. 1939 में 1 September को World War II broke. Then 10th of September to 14th of September in 1939, CWC meeting happened at Wardha. Then October 17, 1939, Lithgow's statement was noted. March 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर में और लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का. Then in August 1940, August offer came. Then in March 1942, Cripps mission came. Then Quit India, following which in February 1943, Gandhi started a fast. Then on March 23rd in 1943, Pakistan Day was declared. In March 1944, C. Rajgopalachari formula was noted. Desai Liaquat Pact आया. इसके बाद जून 1945 में वेवल प्लान आया शिमला कॉन्फ्रेंस में. इसके पीछे भी देयर इज़ अ स्टोरी विच वील सी जब हम इस टॉपिक को डील कर रहे होंगे. एंड देन इन विंटर्स ऑफ 1945 एंड 1946 INA ट्रायल्स began. Then on March 24th 1946 cabinet mission plan came. In February 1947, so the date is 20th February 1947, Attlee's statement came. इसके बाद 18 जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया एंड in 1947 itself the Mountbatten Plan came, after which the country got
इंडिपेंडेंस. सो मोर और लेस ये हमारा पूरा टाइमलाइन है जो कि है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस के अनुसार, और एक प्रॉपर टाइमलाइन है जिस तरीके से हमें करना चाहिए हिस्ट्री को तैयार, या हमें समझना चाहिए. Let's begin with the advent of Europeans now. So India had contact with Europe from time immemorial through land route. But the discovery of sea route had far-reaching consequences on the shape and course of Indian society and history. तो जो पहले इंडिया में आने वाले थे एज ट्रेडर्स वो थे पोर्टुगीज़, उनके बाद डच आए, उनके बाद ब्रिटिश आए, एंड देन लास्टली फ्रेंच आए. तो कई बार क्या होता है कि स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि हु वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एज ट्रेडर्स, सो अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. सो नाउ मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज इन दीज 450 years इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रांजिशन आया. जैसे पहले इंडिया फ्यूडल था, कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम थी. अब नाउ इंडिया इज़ अ कैपिटलिस्टिक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव सोशल सिस्टम. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड विथ सेल्फ असर्शन, introspection and external stimuli of ideas of equality, liberty, fraternity and people's rule instead of one man's rule, that is from monarchy to democracy. ठीक है, तो ये एक हम एक ब्रीफ बैकग्राउंड सेट कर रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को लेके कि कैसे कैसे इंडिया और यूरोप के रिलेशंस इवॉल्व होते चले गए फ्रॉम टाइम टू टाइम. कमिंग ऑन टू द पोर्टुगीज़, क्योंकि पोर्टुगीज़ सबसे पहले इंडिया में आए एज ट्रेडर्स. सो द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर दैट लेड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड प्रमोटेड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज टू द फार फ्लंग एरियाज. और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इन वोयाजेस का वो था कि इन्हें प्रॉफिट अर्न करना था, प्रॉफिट कमाना था फ्रॉम द ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज़. ठीक है, तो जो प्रिंस हेनरी थे, सो द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, he was in the time, in the period from 1398 to 1460, who was the king of Portugal. इन्होंने लीड लिया था among other European nations, and he promoted sea-faring activities. So during the regime of King John II, a sailor, Bartholomew Diaz, crossed the Cape of Good Hope. और इसी टेन्योर में, किंग इमैनुअल के टेन्योर में, एक सेलर थे वास्को डे गामा. आई एम श्योर हम सभी ने इनके बारे में सुना होगा. तो इनके टेन्योर में, किंग इमैनुअल के टेन्योर में, वास्को डे गामा जो है, ही रीच्ड ऑन द कोस्ट ऑफ कैलिकट इन मे 1498 in India. So he was given good reception by Zamorins of Kerala, and by 1503 Vasco da Gama established trading centers at Calicut, Cochin and Kannur. Right? तो अगर हम एक मैप को ध्यान में रखें कि कैसे पोर्टुगीज़ आए होंगे, तो इफ़ यू कैन इमेजिन, तो अफ्रीका के ऊपर से पोर्टुगीज़ आए और क्रॉसिंग अफ्रीका, एंड देन फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका till the Calicut portion, till the southwestern part of India, he might have travelled, है ना, from 1498, in May 1498 ये Calicut पहुँचे होंगे. तो this is how he established many trading centers in the areas of Calicut, Kannur, etc. Then in 1505, D. Almeida was sent as the first Portuguese viceroy in India. ये पहले viceroy आए थे इंडिया में, D. Almeida. और ये अपनी एक ब्लू वाटर पॉलिसी को लेके आए थे, जिसमें इन्होंने प्रपोज किया कि पोर्टुगीज़ डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करेंगे इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में.
ठीक है. So he came up with his blue water policy, whereby he proposed to establish Portuguese dominance in Indian Ocean and Arabian Sea. Then Albuquerque was the next viceroy who was considered as the near founder of Portuguese power in East. He conquered Hormuz in the Persian Gulf and eclipsed influence of Arab traders in India. तो basically Albuquerque की जो बात आती है, Albuquerque जो है वो माने जाते हैं कि ये दूसरे वाइसरॉय थे, पोर्टुगीज़ पावर में आए थे, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन ईस्ट. इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हरमूज वाला जो एरिया है पर्शियन गल्फ में, इन्होंने उसको कॉन्कर किया था, और इन्होंने अरब ट्रेडर्स के इन्फ्लुएंस को भी कैप्चर किया था इंडिया में. देन ही कॉन्कर्ड गोवा इन 1510 एंड क्रिएटेड अ फोर्ट एट कोचिन विद द परमिशन ऑफ लोकल रूलर. तो लोकल रूलर की परमिशन के साथ इन्होंने कोचिन में एक किला बनाया था, क्रिएट किया था. सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नीनो डा कुन्हा, एक पोर्टुगीज़ थे ये भी, इन्होंने अक्वायर किया था दियू को इन 1534 एंड बशीन इन 1538. तो एक जो मेजर इम्पैक्ट था इंडियन सोसाइटी पे बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज़, ये था प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स इन इंडिया, जैसे कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क एंड टोबैको, राइट. सो देयर वाज अ क्वेश्चन बैक इन द ईयर 2017 और 2018 आई गेस, जिसमें कि ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें पूछा था कि पोर्टुगीज़ के आने से किन किन क्रॉप्स का प्रमोशन हुआ था. तो उसमें एक ऑप्शन कॉफ़ी भी था, तो कॉफ़ी वॉज टू बी एलिमिनेटेड, राइट. तो वी हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली कि कैश क्रॉप्स कौन कौन से थे और पोर्टुगीज़ के आने से किन किन क्रॉप्स का प्रमोशन हुआ था. तो इट वॉज cotton, spices, silk and tobacco. Now, talking about the second arriving traders in India, which was Dutch East India Company. तो ये establish हुई थी exactly 20 मार्च 1602 को, and they were mainly interested in spice trade. Very important point to note. They opened their trading port at Pulicat, Cambay, Surat, कासिम बाज़ार, नागापट्टनम, डक्का, पटना एंड हरिहरपुर एंड आगरा. तो यहाँ पे इनके पोर्ट्स इन्होंने ओपन किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, और इनको काफ़ी तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा था विद इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज़. एंड इनके पास मोनोपोली भी थी ट्रेड की विद इंडोनेशिया, विच इज़ कंसिडर्ड एज द मेजर रीज़न why they left India. So they also had monopoly of trade with Indonesia, which is considered as the major reason why they left India. तो डच इसीलिए छोड़ के चले गए थे बिकॉज इनके पास ट्रेडिंग मोनोपोली थी with Indonesia. Next in line were the Danish East India Company. So Danish East India Company जो थी वो establish हुई थी 1616 में, और इन्होंने अपना खुद का ट्रेनिंग आउटपोस्ट जो इस्टेब्लिश किया था, जो बनाया था, वो बनाया था ट्रांक्विल बार इन तमिलनाडु एंड फ्रेडरिक नगर इन सिरमपुर विच इज़ इन बंगाल. ये लोग दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़, और इसीलिए इन्होंने सिरमपुर हब ऑफ द मिशनरी एक्टिविटी को इस्टेब्लिश किया था. देन विलियम रेवरेंड कैरी, ये एक डैनिश ऑफिसर थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक प्रिंटिंग प्रेस को बैक इन 1799 एट सिरमपुर टू पब्लिश बाइबल. तो बाइबल पब्लिश करने के लिए इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया था. हु वॉज ही? विलियम रेवरेंड कैरी, एक डैनिश ऑफिसर थे. फिर 1819 में सिरमपुर कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल, राइट. Next in line is the English East India Company. Now, the English Association of Merchant Adventurers was established in 1519 with the objective of carrying on trade with the East. So, on 31st December 1600, Queen Elizabeth gave royal charter for 15 years to merchant
adventurers. Over the period, this company came to be known as the English East India Company. तो बेसिकली जो इंग्लिश एसोसिएशन हुआ मर्चेंट एडवेंचरर्स का, वो बैक इन 1599 के अराउंड हुआ इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो ईस्ट में आके ट्रेड को कैरी करेंगे. फिर 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया 15 साल के लिए. किसको? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है. और इसी पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, द कंपनी केम टू बी नोन एज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ अराउंड 1608 अ ब्रिटिश envoy led by Sir Hawkins came to Jahangir's court, who gave them trading concessions and also mansab status to William Hawkins. तो 1608 के अराउंड में एक ब्रिटिश एनवॉय जिसको कि सर हॉकिंस लीड कर रहे थे, वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और वहाँ पे जहांगीर ने उन्हें ट्रेडिंग कंसेशन दिया और मनसब स्टेटस भी दिया विलियम हॉकिंस को. लेकिन जल्द ही सारे कंसेशंस जो थे वो रिवोक हो गए थे, वो ले लिए गए थे वापस जहांगीर से अंडर द प्रेशर ऑफ नोबल्स इन हिज कोर्ट. सो बाय दिस टाइम इन 1612 English completed construction of their warehouses at Surat and Masulipatam. So by the time William Hawkins was given the mansab status and the trading concessions, and after granting those concessions, after revoking those concessions, by that time इनका खुद का warehouse सूरत में और मसूलीपट्टनम में डेवलप हो चुका था. फिर 1615 में सर थॉमस रो जो हैं वो विज़िट करते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश वर ग्रांटेड फर्दर ट्रेडिंग कंसेशंस, आफ्टर विच दे एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच. तो देखिए, ये सेंटर्स जो हैं ये हमें याद करना ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए कि उनके जो इनिशियल वेयर हाउसेस थे वो कहाँ कहाँ डेवलप किए गए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द फैक्ट दैट कौन से किंग या कौन से जो ऑफिसर थे वो किसके कोर्ट में विज़िट किए और उनको ट्रेडिंग कंसेशंस कहाँ कहाँ किस किस सिटी के लिए मिला. जैसे कि सर थॉमस रो को मिला था आगरा, अहमदाबाद और भरूच के लिए. Then in 1639 they got villages on lease around Madras where they created St. Fort George. फिर 1661 में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ किसके बीच में? पोर्टुगीज प्रिंसेस जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा विद प्रिंस सेकेंड ऑफ ब्रिटेन. सो एज अ डाउरी प्राइस the island of Bombay was transferred to British monarch. How interesting is this? मतलब 1661 में एक मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, शादी की जाती है पोर्टुगीज प्रिंसेस जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा विद प्रिंस सेकेंड ऑफ ब्रिटेन, और डाउरी दहेज के उसमें उनको दिया गया बॉम्बे का एक आइलैंड. Right? So 1668 में Bombay was transferred to English East India Company at a nominal price of 10 pounds. सिर्फ 10 पाउंड की कीमत लगी थी उस बॉम्बे के आइलैंड पे, जिसके बाद बॉम्बे जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया था. Bombay soon became the trading headquarter of Britishers. Now you see, now you understand how Bombay became the first, the initial and the biggest trading center for Britishers. Now they entered in East India relatively late, that is Hariharpur in 1633. In 1698 they received 3 villages on lease, that is Govindpur, Sutnati and Calicut, and clubbed them together to create St. Fort William. तो 1698 में इन्होंने इनको 3 गांव मिले लीज पे, जो कि गोविंदपुर था, सूतनती था और कैलिकटा था, एंड इन सभी को मिला के एक सेंट फोर्ट विलियम बनाया गया. टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी,
इट वॉज द लास्ट यूरोपियन कंपनी, ये आखिरी यूरोपियन कंपनी थी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1664 में. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ स्टेट ओन्ड कंपनी एंड ऑन द अदर हैंड English East India Company was a private entity. So from 1723, French East India Company was completely controlled by French government. They established their factories at Surat in 1668, Masulipatam in 1669, Pondicherry in 1663, Chandranagar in 1692. और इसी के बाद जैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल होता है, राइवलरी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश स्टार्टेड. यहीं से इनके बीच तनाव खिंचाव शुरू हो गए थे. तो विद द अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स in 1740, the rivalry between the two companies aggravated. French were the first who initiated the strategy of interfering in the internal affairs of Indian states to obtain political mileage, but it was British who mastered this strategy. तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो ये दोनों ही कंपनियां, ये दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज़ और इनकी कंपनी, ये दोनों इंडिया के ऊपर खेल रहे थे. इंडिया के स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट को, इनके मैकेनिज़्म को, इनकी किस तरीके से रूलिंग होगी, किस तरीके से इंटरनल अफेयर्स चलाए जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, ये दोनों कंट्रीज़, ये दोनों कंपनियां इंडिया के इंटरनल अफेयर्स पे लड़ने लग गए थे. तो एक तरफ फ्रेंच जो थे वो पहले थे जिन्होंने इंटरफेयरिंग करने की या इंटरफेयर करने की जो स्ट्रैटेजी थी उसको मास्टर किया पॉलिटिकल माइलेज के लिए, लेकिन ब्रिटिश ने इसकी स्ट्रैटेजी को मास्टर किया और यूज्ड इट फॉर एलिमिनेटिंग द इंपीरियल एम्बिशंस ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. सो दैट्स हाउ वी सी कि किस तरीके से फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो राइवलरी स्टार्ट हुई, और ये राइवलरी स्टार्ट होती है इंटरनल अफेयर्स के ऊपर. इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर ये दोनों ही देश इंटरफेयर करते हैं, घुसते हैं अंदर के मामलों में, और एक स्ट्रैटेजी को इंटरफेयर करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और दूसरा जो कि ब्रिटिश था, दे मास्टर्ड द स्ट्रैटेजी और इन्होंने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के इम्पीरियल एम्बिशंस को एलिमिनेट कर दिया. सो दिस इज़ हाउ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इज़ डन. दिस इज़ हाउ वी कैन सी कि कैसे पहले पोर्टुगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे ये एक के बाद एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में आते हैं. ये अपने वेयर हाउसेस, ये अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करते हैं. कैसे इनको ट्रेडिंग राइट्स मिले, कहाँ किस सिटी में इनको ट्रेडिंग राइट्स मिले, किन के रिवोक हो गए, किन को कम्प्लीटली मिले. तो ये एक ब्रीफ था कि यूरोपियंस का एडवेंट, यूरोपियंस का इंटरफेरेंस किस तरीके से एक के बाद एक होता है. इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा लेटर मुगल्स का, और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का. तो वहीं से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में, और फिर पूरी ब्रिटिश की कहानी और पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी स्टार्ट होगी. And that brings us to the end of this episode. Thanks for joining during the series, and I hope that this series is beneficial for you. As always, thank you for listening to Prepcast. If you enjoy this show, please rate and review on Apple Podcasts, and also like, share and subscribe onto the GS League YouTube channel. Thank you.